پاک کے ایسے قلعے مدرسے اور جامعات کی شکل میں تعمیر کریں جن سے نکلنے والے علماء ہر دور میں نسلن بعد نسلن اور قرنن بعد قرنن اس فریضے کو انجام دیتے رہیں۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلموں مومن کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خود بھی جھوٹ سے بچے اور دوسروں کو بھی جھوٹ سے بچائے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خود بھی شراب سے بچے اور دوسروں کو بھی شراب سے بچائے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلموں مومن کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خود بھی برائی سے بچے اور سماج کو بھی برائی سے بچائے۔ مگر ایک مسلمان ایک ایمان لانے کے بعد اگر وہ جھوٹ سے بچنے کے بجائے خود ہی جھوٹ بولتا پھرے، اگر وہ مسلمان ایمان لانے کے بعد اگر شراب سے بچنے کے بجائے خود ہی سر عام شراب پیتا پھرے، اگر وہ مسلمان بدکاری سے بچنے کے بجائے خود ہی بدکاری کرنے لگے، اگر وہ مسلمان معاشرے کے اندر تہذیب و تمدن پھیلانے کے بجائے خود ہی برائی کا گہوارہ بن جائے، تو آپ یہ بتاؤ کہ وہ مسلمان مذہب اسلام کی تعلیم کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ وہ مسلمان اپنے عمل کے ذریعے سے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں آپ کس لیے آئے ہو؟ آج یہاں آپ تعمیری سلسلے میں آپ تشریف لائے ہو اور تعمیری کانفرنس ہے یہ، اس لیے میں نے بتایا کہ آج سب سے زیادہ اگر آپ کے ایمان کو کوئی بچا سکتا ہے وہی یہ مدارس اسلامیہ ہے۔ ان سے نکلنے والے یہ وہ مساجد کے ائمہ کرام جو دن رات آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی مساجد سے اپنے مدارس سے ایک پیغام قوم کو دیتے ہیں کہ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اسلام کے نام پر تو بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کے سامنے، میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس امام کے قریب ہو سب سے پہلا آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے امام کی قدر کیجئے۔ وجہ یہ ہو گئی ہے کہ وہ امام ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا ہے، مگر ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ آپ نے تو اس کو کچھ موقع ہی نہیں دیا۔ کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ کیا ہم نے اس کو عزت دی؟ نہیں عزت دی۔ آج یہ قوم اگر برائی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، آج یہ قوم اگر تنزل کا شکار ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم آج علماء کرام سے دوری ہمارے ہلاکت کا سبب بن گئی۔ آج جو دیکھو وہ امام کے بارے میں گپ شپ کر رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے کہ اے لوگوں، آج 3 خانے ہیں ہمارے، ایک تو عبادات کا، دوسرا معاملات کا، تیسرا اخلاقیات کا۔ اگر ہم ان تینوں خانے کے اندر غور کریں، عبادات میں کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر اس معاملے ہم دیکھیں تو اس حمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں۔ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے میں کدے سے ساقی ایک عجب تماشا دیکھا گیا، سب کو زہد تقوا گئی سب کی پارسائی۔ تو اس عبادات کے معاملے میں تو مسلمان اتنا پیچھے ہو گیا کہ جمعہ ٹو جمعہ، آج جمعہ تھا تو آج مسجد بھر گئی، اس کے بعد عصر آیا تو یہ مسلمان کہاں دفن ہو گیا؟ یہ مسلمان کہاں چلا گیا جو جمعہ میں موجود تھا اور عصر میں غائب؟ اور یہ مسلمان ایک ہفتہ کہاں غائب رہتا ہے وہ بتاؤ؟ کہ یہ مسلمانوں نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ سنڈے عیسائیوں کی طرح کہ سنڈے ٹو سنڈے چرچ میں جاؤ اور گناہ معاف کروا کے چلے جاؤ۔ آج مسلمانوں کا یہ المیہ ہے۔ اور معاملات لے لیجئے، معاملات میں اگر ہم دیکھ لیں تو معاملات میں بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، اخلاقیات میں بھی ہم مسلمان نہیں، تو کس چیز میں آپ مسلمان ہو یہ ہمیں بتاؤ۔
आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वक्त खत्म हो चुका है, बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, एक दिन सबको अल्लाह की बारगाह अदालत में जाकर जवाब देना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाकत से बचाने के लिए मक्के की सरजमीन पर अकीदे की मुकद्दस तालीम देकर बदअकीदगी से निजात के लिए इंसानियत का रास्ता खोला था। मगर ये मुसलमान आज कहाँ चला गया है? आज अपने इमाम से दूरी की वजह ये हो गई कि आज लोग गुमराह हो रहे हैं। जहां देखो जिसके पीछे आप नमाज पढ़ लेते हो, जहां देखो जिसके पीछे आप भाग लेते हो। ऐ लोगों, जुमा के अंदर आप मस्जिद में पहले पहुंचा करो, इसलिए कि इमाम आपका जो आपके सामने बातें रखेगा वो इस्लामी कवायद की रोशनी में और हदीस मुस्तफा की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने सबसे पहले वो अकीदा रखेगा कि ऐ लोगों, अगर अकीदा आपका दुरुस्त नहीं है तो आपका कोई अमल मकबूल नहीं होगा। अकीदा पहले है, नमाज बाद में है। और अकीदा कब मजबूत होगा? जब इन उलमाए कराम से आप राब्ता करेंगे। इसलिए कि ऐ लोगों, दीन के नाम पर आज बहुत सारी तंजीमें हैं, दीन के नाम पर आज बहुत सारे लोग टोपीदारी रख करके इस्लाम के नाम पर आपका अकीदा छीनना चाहते हैं। आज ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई है, आप लोग इस मस्जिद के अंदर देख रहे हो, इसकी दूसरी मंजिल की तामीर होनी है। तो ऐ लोगों, जरा सोचो, अगर आपने दामे दर में कदमे सुखने हिस्सा ले लिया तो इंशाअल्लाह ये काम आगे बढ़ जाएगा। और ये काम कैसे बढ़ेगा आपको मैं बताऊं। मस्जिद नबवी ऐसी मस्जिद थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब आका करीम मक्का मुकर्रमा के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहला काम क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। सारी मस्जिदें ये कैसे तामीर हुई है? आका करीम मक्का मुकर्रमा पहुंचने से पहले मस्जिद कुबा की तामीर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, सबसे बड़ा सेंटर अगर कोई है, सबसे बड़ा तौहीद का या रिसालत का अगर कोई सेंटर है तो यही अल्लाह का घर है। इसलिए कि इसी अल्लाह के घर में उस वक्त मदरसे नहीं थे हमारे पास, मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद भी थी वो और मदरसा भी था वो। और सहाबे कराम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हजार सहाबे कराम को उसी मस्जिद नबवी के अंदर से कुरान और सुन्नत का इल्म दे करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जब ये फौज निकली है मदीने से तो मक्के से निकला इस्लाम मदीना पहुंचा है और मदीने से निकला इस्लाम सारे अरब में अंदर फैल गया। तो आप लोग बताओ जरा, कैसे इस्लाम फैल रहा है? इस्लाम की नशर इशरात की वजह क्या है? तो यही वो मदारिस है और यही वो मसाजिद है। दो ही काम है हमारे पास, दो ही चीजें हैं जो सेंटर है हमारे पास। अगर आप मस्जिद नहीं होगी और अगर मस्जिद है आपके पास तो आप मस्जिद से आपके बच्चे दीन का इल्म हासिल करेंगे। क्या होता है आपकी मस्जिद में? नमाज पंजगाना अदा करने वाला इमाम 5 वक्त की आप नमाज की पाबंदी के साथ आपको नमाज पढ़ाता है, मगर आपके बच्चों को और मोहल्ले के लोगों को जो लोग कुरान सही से पढ़ना नहीं आता है वही इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको कुरान भी सिखा रहा है। यही कौम नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा है तो इनको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जा रहा है। इसी कौम को यानी हज के मसाइल नहीं मालूम है तो वो सारे मसाइल सिखाए जा रहे हैं। तो आए लोगों, मसाजिद की कितनी ज्यादा जरूरत है वो आप समझ रहे होंगे। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं कि ऐ लोगों, जहां जहां से आप आए हो और जहां जहां आप रहते हो, अपने अपने मसाजिद के आइम्मा कराम का और बिलखुसूस मसाजिद का आप एहतराम करें। और एहतराम कैसे करेंगे? ये मस्जिद कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको सवारी की शक्ल में पेश करेगा और फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन और कहेगा ऐ मेरे फरिश्तों, जरा बुलाओ इसके इमाम को। इमाम भी आएगा और मुअज्जिन भी आएगा। आप जरा सोचो, इसकी लगाम मुअज्जिन के हाथ में होगी और आज इमाम को जो तुम बेकदरी की निगाहों से देख रहे हो, आज नाइब इमाम को जो तुम बेकदरी की निगाहों से देख रहे हो, आज हमारी कौम की बर्बादी का एक सबसे बड़ी वजह यही है कि आज इन लोगों ने इमाम को पता नहीं क्या समझ लिया है। अगर कोई 5 वक्त का नमाजी है वो 24 घंटा इमाम की बुराई में लगा रहता है। ऐ लोगों, जरा सोचो तो सही, उसने 60 साल की जिंदगी गुजारने के बाद अब जब वो मस्जिद का रुख करता है तो अपनी 55 साल की जिंदगी पूरी भूल जाता है कि मैंने 55 साल के अंदर क्या किया है। अपनी सारी मक्कारी भूल गया, अपनी सारी अय्याशी भूल जाता है। उसके बाद जब मस्जिद का इमाम, अब जब वहां पर अगर 25 साल का इमाम है या 26 साल का इमाम है, अगर कोई वजह हो गई और मस्जिद का इमाम अगर फजर में ना आ सका तो चीमें गोइयां शुरू हो जाती है। अरे कैसा इमाम है, इसको बदलना पड़ेगा। ऐ लोगों, जरा सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है और ये ऐसा घर है कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको
सूरत सवारी की सूरत में लाएगा और इमाम उस पर सवार होगा। अल्लाह फरमाएगा, ए इमाम नमाज पढ़ाने वाले अपने कौम को जरा तू पहचानता है कौन कौन तेरे पीछे नमाज अदा करते थे? आप जरा सोचो, अगर आपने मस्जिद के इमाम का दिल दुखाया होगा, अगर आपने मस्जिद के इमाम का दिल तोड़ा होगा, तो आप जरा सोचो उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, क़यामत के दिन कोई काम आने वाला नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम को ये मर्तबा देगा और नाइब इमाम को जो अजान पढ़ता है उसको ये मर्तबा हासिल होगा। अल्लाह फरमाएगा कि तुम पहचानते हो कौन कौन तुम्हारे पीछे नमाज अदा करते थे? अब वो कहेगा, या रब्बुल आलमीन फला फला मेरे पीछे इमाम नमाज पढ़ते थे। अल्लाह कहेगा, इनको ले लो और सवारी पर सवार होकर के इनको जन्नत के अंदर लिए चले जाओ। मगर अगर आपने मस्जिद के इमाम का दिल दुखाया होगा और अगर आपने किसी तरीके से उनको तकलीफ दी होगी, तो याद रखिएगा आपकी नमाजें उस वक्त नहीं बचा पाएंगी, आपके सारे अमाले सालिहात उस वक्त काम नहीं आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, मजबूती के साथ जहाँ पर जो है और अपने ईमान से मजबूती के साथ रिश्ता कायम करें और उलमा की कदर कीजिए, क्योंकि यही उलमा है, इनके जरिए से ये दीन की रोशनी आज फैल रही है और ये उलमा भी निगाह में है। ये तो उलमा गवर्नमेंट की निगाह में कौन इनको नहीं शक्ति निगाह से देखता है, मगर हमारी आवाम भी शक्ति निगाह से देखती है। बड़ी तकलीफ ये है कि आज गैर तो हम पर हमला कर ही रहा है, मगर अपने लोग दाढ़ी टोपी कहलाने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी रखने वाले, टोपी लगाने वाले और 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले जब इमाम की बुराई करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐ लोगों जरा देखो, ये गैर की नजर में भी है, गैर भी चाह रहा है कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, इसलिए कि जब जब कौम सोई है और जब जब किसी कौम के अंदर बेदारी आई है तो इन्हीं इमामों का सदका है। ये अगर बेदारी आपके अंदर लाए हैं, चाहे जिस ताल्लुक से हो, अगर इबादत के मामले में अगर बेदारी आपके अंदर आती है तो इन्हीं इमाम का सदका है, अगर तालीम के मामले में आपके अंदर बेदारी आती है तो यही इमाम का सदका है। आप जरा सोचो तो सही, किस तरीके से आपके लिए और आपके बच्चों के लिए इनके दिमाग में और दिलो दिमाग में हर वक्त ये सहन रहता है कि कैसे इनको मोड़ करके कैसे इनको दीन की राह पर लाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जरा सोचो और एक मुहासबा करो कि आपने अपने लिए क्या किया है। अल्लाह तो फरमाता है, एक दिन आएगा जिस दिन हम तुम्हारी सड़ी गली हड्डियों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद क्या होगा? परवरदिगार के सामने इंसान का हिसाब होगा, इंसान का नाम अमाल खुद इंसान के सामने रखा जाएगा और इंसान खुद इसी सूरत में अपने नाम अमाल को जब देखेगा तो फैसला तो बाद में सुनाया जाएगा, ये जमीर पहले ही फैसला सुनाने लगेगा। ये बात तय हो गई है, अब जब फैसला क्या सुनाएगा, अब तो हमें मालूम हो गया है कि हम किधर जाएंगे। तो ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, इस बात पर हम गौर क्यों नहीं करते हैं? अपने अपने इमामों का दामन मजबूती से पकड़ो और इतनी मोहब्बत करो इनसे कि जब ये जन्नत के अंदर जाएं तो अकेले नहीं बल्कि आप लोगों को लेकर के जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इतना बड़ा मकाम अता किया है और क़यामत में भी इनको मकाम मिलेगा और ऐसा मकाम मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे। इसलिए उलमा से हसद और उलमा से जलन एक एतबार से आपको हलाकत में डाल सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप मदारसे इस्लामिया को आप अपने ताउन के जरिए से जितना आपसे हो सके, जितना आप अपनी कोशिश करिए कि इन मदारिस को आगे बढ़ाना है और कैसे आगे बढ़ाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हो सके, अब इसमें स्लेब पढ़ने का काम बाकी है। आप जरा देखो, आज जो कमाई आप कमा रहे हो, आप जरा देखो, ये सारी चीजें यही रह जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब आप जाओगे तो तनह तनहा जाना है, कोई औलाद भी साथ नहीं जाएगी, बाप भी साथ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जिसके लिए आपने अपनी आखिरत को बर्बाद किया है वो बेटा आज ऐशो आराम में मुब्तला होगा, मगर आपको लोग छोड़ करके चले आएंगे। मगर जितनी नेकियां आपने की होंगी और कितनी नेकियां की होंगी, अब जरा आका करीम की हदीस पढ़िए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अनहु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन। ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो सारे अमाल का सिलसिला रुक जाता है। बस 3 अमल अगर उसने कर लिया है तो उनका सिलसिला जारी रहता है। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, अगर मरने वाले ने सदक़े जारिया कर लिया है अपनी जिंदगी के अंदर, तो ऐ लोगों जरा देखो, आप तो मर करके चले गए हो, मगर ये मस्जिद जब तक रहेगी, क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी और क़यामत तक उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा। आप नमाज पढ़ते थे, इंतकाल के बाद नमाज का सवाब रुक गया। आप हज करते थे, इंतकाल के बाद आप हज का सवाब रुक गया। आप ज़कात देते थे, इंतकाल के बाद आपकी ज़कात का सवाब रुक गया। जितने आमाले सालिहा आप करते थे सारों का सिलसिला रुक जाएगा जब आपकी मौत
आ जाएगी। मगर 3 काम अगर आप करके मरे हैं तो आप तो मर करके चले गए हैं, मगर ये 3 काम का सिलसिला क़यामत तक जब तक ये रहेंगे ये सिलसिला जारी रहेगा। नंबर 1 पर सदक़े जारिया है। तो ऐ लोगों, सदक़े जारिया क्या चीज है? ये मस्जिद बन रही है, इसी में तो सदक़े जारिया है। आज अगर आप जिस तरीके से भी, जितना आपके पास कोई बोझ आप पर नहीं डाला जाता है, मगर जितना अल्लाह ने आपको दिया है, ये तो सोचो जरा। अल्लाह ये नहीं कहता है जो आप अपनी कमाई का मेरी राह में खर्च कर दो, अल्लाह कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसमें से कुछ मेरी राह में खर्च करो। आप जरा सोचो तो सही, परवरदिगार के फरमान पर अगर आप गौर करें, अल्लाह कहता है जो हमने दिया है आपको तो वो मेरी राह में उसमें से थोड़ा खर्च करो। तो आप अगर इतना खर्च कर जाओगे तो आप तो जाहिर में चले गए दुनिया से, मगर ये सिलसिला चलता रहा आपका। तीसरे दूसरे नंबर पर और इल्मिन यंतफ़उ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ करके आप मरो। ये क्या इल्म छोड़ करके मरोगे? मदरसा बन रहा है, आप उसमें तामीरी काम में हिस्सा ले लिए तो आप तो चले जाओगे दुनिया से। ये मदरसा रहेगा, मदरसे निकलने वाले बच्चे ये क़यामत तक निकलते रहेंगे। इसने इसको पढ़ाया, इसने इसको पढ़ाया, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप यहाँ पर जरा देखिएगा, मौलाना शरफुद्दीन साहब अकेले आए थे, मगर इन्होंने कैसे कैसे जिंदगी अपनी गुजारी है। कभी किराए पर लेकर के इल्म दीन फैलाया है और कभी इस तरीके पर लेकर के फैलाया है। मगर देखो आज अल्लाह ने वो इनकी मेहनत काम आ गई और एक बिल्डिंग आपके सामने ये खड़ी हुई है। ये इन्हीं मेहनत शाक़ा का नतीजा है कि इन्होंने अपनी मेहनत के जरिए एक मंजिल तामीर कराई है। अब आपको देखना है कि आप इनका किस तरीके पर साथ देते हैं। जितना आपसे हो सकता है उस तरीके पर इनका साथ दीजिए और कदमे इनके दामे दरमे कदमे हर तरह से आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और जब आप हिस्सा लेंगे तो आका का फरमाते हैं और इल्मिन युनतफ़उ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ करके मरा है। आप तो इल्म नहीं छोड़े हो, मगर मौलाना शरफुद्दीन ने या फला इमाम साहब ने, ये जितने उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इसको पढ़ाया होगा, उन्होंने उसको पढ़ाया होगा, उन्होंने उसको पढ़ाया होगा, यानी क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो चला गया दुनिया से, इसने तो हिस्सा लिया था, मगर सुनो जब तक ये सिलसिला इसका जारी रहेगा, ये इल्म फैलता रहेगा, दीन फैलता रहेगा, क़यामत तक कब्र में उसको सवाब पहुंचता रहेगा। तो ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, आप ऐसा काम करके मरो। अरे मरना तो सबको है, मगर कुछ ऐसा काम करके मरो कि कब्र में पहुंचने के बाद जब कब्र के अंदर आप पहुंचो तो जब फरिश्ते कब्र में आए और तो ये कहे ऐ फरिश्तों मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। कुछ ऐसा काम करके मर जाओ। आखिर मरना तो सबको है, मगर कुछ लोग तो ऐसे ही मर गए जिनसे कुछ काम ना हो सका। मगर हम और आप ऐसे क्यों मरे? कुछ काम करके मरे ताकि कब्र में पहुंचने के बाद कुछ राहत मिल जाए। मगर आखिरी नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं और वलदिन सालिहिन यदूला, यानी ऐ मेरे उम्मतियों या नेक औलाद छोड़ करके मरो। ऐ लोगों जरा देखो तो सही, अगर अपनी जिंदगी में अगर अपनी औलाद को आपने नेक बना लिया है तो याद रखिएगा मरने के बाद भी औलाद आपको नफा पहुंचाएगी। जिस तरीके से दुनिया में अगर आपकी औलाद अच्छा काम करती है तो माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। बाप कहता है आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया है इसलिए कि मेरे बेटे ने आज कुरान सुनाया है, आज मेरे बेटे ने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली है। आप जरा देखो तो सही। और अगर आपने औलाद को नेक नहीं बनाया है, ऐ लोगों औलाद को नेक बना करके जाओ, औलाद को नेक बनाओ और यही दुआ करो। जिनके औलाद नहीं है यही दुआ करे रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। इसलिए कि नेक औलाद दुनिया में भी राहत का सामान अता करती है और मरने के बाद कब्र में भी राहत का सामान अता करेगी। आप जरा सोचो, आका फरमाते हैं और वलदिन सालिहीन यदूला, या मरने वाला अगर नेक औलाद छोड़ करके मरा है तो वो तो जाहिर दुनिया से चला गया है, मगर इसकी औलाद अगर नेक होगी तो वो इमाम से मोहब्बत करेगी, वो आलिम दीन से मोहब्बत करेगी और वो क्या ख्याल करेगी। देखिए मस्जिद के अंदर क्या चीज की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कैसे निकलेगी। उसके अंदर एक फिक्र अजीब जाग रही होगी कि हमें मस्जिद का काम आगे बढ़ाना है, इसलिए कि वो नेक है। और जब वो नेक होगा तो उसको खुद ब खुद फिक्र लाहिक हो जाएगी, वो दुनिया भी कमाएगा तो ये देख करके कमाएगा। देखिए इसमें मेरे अल्लाह की रजा है ये नहीं है, जिसमें मेरे रसूल की इताअत है नहीं है। अब वो जब बच्चा नेक होगा तो वो जब चलेगा तो इस तरीके पर चलेगा, सुन्नत रसूल को सामने रखकर चलेगा, और सुन्नत जब खाएगा तो सुन्नत रसूल को सामने रखकर खाएगा, यानी अपनी पूरी जिंदगी वो सुन्नत रसूल के आईने में गुजारेगा। इसलिए अपनी औलाद को नेक बना करके जाना। जब औलाद नेक होगी तो आपको कब्र में राहत मिलेगी, और अगर औलाद बुरी होगी, एक हदीस में तो आया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर दुशंबा के दिन और एक जुमरात के दिन आका करीम का फरमाने वाली शान है कि मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। अब जब उसके अमाल जब पेश किए जाते हैं और ये बयान किया जाता है, ऐ मरने वाले देख तूने फला फला औलाद छोड़ी है, आज तेरी औलाद ने ये काम किया है। तो आका फरमाते हैं अगर वो औलाद नेक काम करती है तो उस मरने वाले का दिल खुश हो जाता है और वहीं से दुआएं करने लगता है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी औलाद को और ज्यादा तरक्की अता फरमा। और सुनो, अगर वो औलाद गुनाह करती है, मरने के बाद अगर वो औलाद शराबी हो गई, मरने के बाद अगर वो औलाद जानी हो गई,
मरने के बाद अगर वो औलाद अय्याश हो गई, अगर आप गैरों का हाथ पकड़ करके अगर बदअकीदा हो गई, अब जब उसके अमाल पेश किए जाएंगे अब मरने वाले को कितनी तकलीफ होगी। तो आए लोगों, पूरी जिंदगी तुमने तकलीफ उठाई है, औलाद के लिए तुमने, आप तो नमाजों की फिक्र नहीं की है, बल्कि औलाद के लिए कारोबार में अगर लगे हो तो तुम्हें ये नहीं पता है कि कब नमाज का वक्त शुरू हो गया है। सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ औलाद की फिक्र में लग गए हो, तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो। जो औलाद मरने के बाद आपकी एसी में रहेगी, एसी गाड़ी में घूमेगी, आपको कोई नहीं याद करने वाला है। आज कब्रिस्तान के अंदर चीखो पुकार मची हुई है, ऐ अल्लाह माफ कर दे। परवरदिगार फरमाएगा आप नहीं माफ करूंगा, इसलिए कि मैंने किसी को 60 साल जिंदगी अता की, किसी को 70 साल जिंदगी अता की। इन जिंदगियों में तुमने ये बताओ कितना काम ऐसा किया है जिससे रब राजी हो जाए। तो आज अल्लाह का मुनादी ऐलान कर रहा है मुझसे कोई माफी मांगने वाला मैं उसे माफ कर दूं, है मुझसे कोई मगफिरत तलब करने वाला मैं उसे मगफिरत तलब कर दूं, मैं उसे माफ कर दूं। अल्लाह का मुनादी आज ऐलान कर रहा है ऐ लोगों, आज तो आपके सामने बहुत सारे वसाइल हैं अल्लाह को राजी करने के, हर तरह से आप अल्लाह को राजी कर सकते हो, मगर मरने के बाद कोई वसीला नहीं रह जाएगा। बस यही होगा कि वो बाप एक तो दिन ऐसा आएगा आपके मरने के बाद थोड़े दिन बच्चों को बुला करके कुरान खानी करा दी जाएगी, उसके बाद 12 साल भूल जाएंगे। आप जरा देखो, आप तो वहां पर अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे, मगर यही औलाद आज ऐशो आराम में होगी। इसलिए मरने से पहले पहले मैं तुमसे ये वसीयत करके जा रहा हूं, ऐ लोगों कुछ करना या करना। आज तुम जिस तरीके से आज दुनिया का काम हो, अगर आपके घर के अंदर शादी होती है तो 1 महीना पहले उसकी तैयारी होती है, 1 साल पहले उसकी तैयारी, अगर मकान बनाना हो तो 1-2 साल पहले तैयारी, मगर उस घर की आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो जिस घर में हमेशा रहना है, और उस घर की तैयारी करके आप उसको क्यों भूल जा रहे हो। वो घर आपको नहीं भूल रहा है। आका फरमाते हैं कब्र हर रोज आवाज देती है, ऐ आने वाले शख्स मैं अंधेरी का घर हूँ, मेरे पास रोशनी नहीं है, यहाँ से रोशनी का इंतजाम करके आना। ऐ आने वाले शख्स मेरे पास बिस्तर नहीं है, यहाँ से बिस्तर का इंतजाम करके आना। ऐ आने वाले शख्स मैं सांप बिच्छुओं का घर हूँ, कीड़े मकोड़े का घर हूँ। आप जरा देखो, इस तरह से रोजाना वो घर जिसको आप भूल चुके हो और ये घर जिसकी आराइश और ज़ेबाइश में आप हमा वक्त लगे हो, अगर तीसरी मंजिल तैयार है और तीसरी मंजिल पर टाइल्स नहीं लगा है तो आप बेफिक्र, आप फिक्र में लगे हैं कि कब इस पर टाइल लगाना है, कैसे इसका इंतजाम करना है, मगर उस घर को क्यों भूल जा रहे हो। उस घर को कैसे बनाना है। इस घर को जब अल्लाह के घर को जब आबाद करोगे तो वो घर वहां पर बनेगा। आका फरमाते हैं मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु बैतल्लाहु फिल जन्नह। आका फरमाते हैं जिसने अल्लाह की रजा के लिए एक मस्जिद तामीर कराई, अल्लाह जन्नत के अंदर उसका घर बनाएगा। तो आप उस घर को बनाओ, उस घर की तामीर करो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मौलाना फैयाजुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, वक्त खत्म हो चुका है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। उलमा से मोहब्बत कीजिए, इनके करीब आएंगे आप तो दीन के करीब आएंगे, और अगर इनसे नफरत करेंगे तो आप हलाकत में पड़ जाएंगे। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, आज वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो ज़िंदगी की नेमत अता की है, अगर आप सांसों का शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। आप ज़रा सोचो तो सही, जितनी ज़िंदगी आज अगर आप बीमार हो जाते हो तो लाखों रुपये हॉस्पिटल में खर्च हो जाते हैं। आप ज़रा देखो कैसे आप नाशुक्री करते हो। आप अगर इस ज़िंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करें तो कभी आप शुक्रगुजार नहीं बन सकते हो। मगर सुनो, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा होगा। अल्लाह की 5 वक्त की अजान, अल्लाह के घर से 5 वक्त आपको दावत मिलती है। आज यहाँ मौलाना शरफुद्दीन ने आपको दावत दी है, आप जरा सोचो उनकी दावत पर आपने लब्बैक कहा। इतने उलमाए कराम आए इन्हीं की दावत पर, और अगर ये ना आते तो इनको तकलीफ होती। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह के घर से आपको 5 वक्त दावत मिल रही है। आप जरा देखो, अगर आपका भाई शादी करता है, आपको दावत देता है, अगर आप उस भाई की शादी के यहाँ दावत में ना जाएं तो रिश्ता में टूटने पर रिश्ता आ जाता है कि अब रिश्ता यहाँ से टूट जाएगा। तो ऐ लोगों जरा देखो, वो रब रब के घर से 5 वक्त दावत तुम्हें दी जा रही है। हय्या अलस सलाह, कहाँ हो मेरे बंदो, कहाँ हो मेरे बंदो, आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, कहाँ हो मेरे बंदो, आओ कामयाबी के लिए। तो जो रब के घर से 5 वक्त की दावत दी जा रही, तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे की दावत पर ना पहुंचे तो रिश्ता टूट जाता है। तो अगर रब की दावत पर आप ना पहुंचो तो क्या आपका रब से रिश्ता कुछ बाकी रहेगा। आप जरा सोचें,
ठंडे दिल से सोचे। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, आखिरत के बारे में जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान जाओ तो तुमसे तुम्हारे बिस्तर छूट जाएंगे। तुम बिस्तरों को छोड़ करके तुम क्या करोगे? बस तुम अल्लाह की तस्बीह व तहलील करोगे। तो आप जरा बताओ, अल्लाह के घर से इतना दूर क्यों हो रहे हो? नमाज से इतना दूर क्यों जा रहे हो? आप ये जरा एक ठंडे दिल से सोचो। आज हमारा यहाँ जलसे में आकर के इस कौम ने तो इतना बुरा हाल कर दिया है अपना। ये कौम सिर्फ नारे पर भरोसा कर रही है। ऐ लोगों सुनो, कब्र के अंदर क्या पूछा जाएगा? अकीदे के बाद सबसे पहली नमाज पूछी जाएगी। और नमाज अदा कैसे करेंगे? अल्लाह का जब घर होगा। ऐ लोगों, आज तुम हर एक के पीछे नमाज पढ़ लेते हो। ऐ लोगों, इमाम देख करके नमाज पढ़ना। अगर इमाम मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार है तो नियत बांध के खड़े हो जाना। और अगर इमाम मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गद्दार है तो लात मार करके पीछे आ जाना। इसलिए कि ऐ लोगों, नमाज तो बाद में रखिए, अकीदा पहले रखा अल्लाह ने। और अकीदा आपका क्या है? सारा का सारा दीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का नाम है। आप मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना रिश्ता मजबूत कर लो, आपके दिल और आपके जान के अंदर इतनी मोहब्बत आ जाए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, इनसे किसी ने पूछ लिया, ये जो नमाज में कसर करते हो इसकी तफसील कहाँ आई है? आप जरा बताइए। कुरान में ये नहीं है कब करें कितनी करें, आप जरा बताइए। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद जवाब देने लगे कि क्या सवाल कर दिया? उन्होंने कहा, हमारा अकीदा सुन लो, हमारा मसलक सुन लो, हमारा मशरब सुन लो। कहा, इन्नल्लाह क़द बासा इलैना मुहम्मदन ला नअलमु शैयन राई नफलु कमा रायतनाहु यफअल। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जवाब देते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने अपना सोना मोहम्मद हमारे अंदर भेज दिया। बस हम क्या नालमू, बस हम हुजूर को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ना हमारा अमल हमारे साथ है, ना हमारी नमाज हमारे साथ है, ना हमारे अमल हमारे साले कुछ भी हमारे साथ नहीं। बस हुजूर को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जैसा हुजूर करते थे वैसा हम करने लगे। ऐ लोगों जरा देखो सहाबा कराम किस तरीके से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनका अदब करते थे। मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का अदब इस तरह से था, इस तरह से कि एक ऊंट आया था, सजदा करने लगा था। सहाबा तड़प गए थे, या रसूल अल्लाह, ये जानवर सजदे करें और हम इंसान होकर सजदे न करें। ये सवाल इस बात पर दलालत करता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, ये सवाल इस बात पर दलालत कर रहा है कि सहाबा किराम के दिलों के अंदर इश्क और अदब का आलम यह था कि हर वक्त सजदा करने को तड़पते रहते थे, मगर इजाजत नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया और फरमाया कि सजदा सिर्फ परवरदिगार का हक है। और मक्का के काफिरों से यही मेरे आका ने फरमाया था, ए मक्का के काफिरों सुनो, सजदा सिर्फ परवरदिगार का हक है। और सुनो, मैं पूजने के खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हारी सरिश्त में अल्लाह ने इबादत को रखा है। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि पूजा ना करो, मैं कहता हूँ पूजा जरूर करो, मगर उनको मत पूजना जिनको अपने हाथों से बनाते हो, बल्कि उसको पूजो जिसने अपने कुदरत से सारी कायनात को पैदा किया। ये तसव्वुर इबादत मैं ये चंद कलिमात अपनी तमीज से हट करके इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आज लखनऊ का हाल मैं देख रहा हूँ, जहाँ देखो वहाँ नियत बांध करके खड़े हो जाते हो। नहीं, नियत बांध करके अपनी नमाजों को बर्बाद मत करो। नियत बांध करके कैसे नियत बांधोगे? पहले पता कर लो कि ये इमाम मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का आशिक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इसका अकीदा है कि मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि इसका अकीदा है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसा तो नहीं है कि इसका अकीदा है कि हमारी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर इस अकीदे का है वो नाहंजार, तो लाख वो आपका करीबी हो, वो लाख आपका दोस्त हो, लात मार करके पीछे आ जाना। इसलिए कि आए लोगों, कब्र में कोई मौलवी मुल्ला काम नहीं आएगा, कब्र में सच्चा अकीदा सच्चा अमल काम आएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करके जाना चाहता हूँ, कब्र में कोई काम नहीं आया। और कब्र में बता रहा हूँ एक सवाल होगा, सिर्फ एक सवाल होगा कंपलसरी, सिर्फ मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा कि मरने वाले ये बता कि इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था, दुनिया में क्या कहा करता था, जब मस्जिद में खड़े होता था तो क्या कहता था, अपनी तरह कहता था या ये कहता था